हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पहला वीडियो है क्लास 7 के मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स उसको देखेंगे हम। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। नाउ यू नो व्हाट इज इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटीजर? In we have numbers starting from 1 2 3 4 5. They are known as natural number. If we add 0 to the natural number, it becomes whole number. Now it is whole number. Now what is negative, positive and 0? If I have a number line, in this number line I have all negative number and positive number, then we may have a number line and this number line having 0 at the center. At right side we have positive number, left side we have all negative number. As we move toward right, the numbers are increasing. As we move toward left, the number are decreasing. Now, from our chapter, we have properties of addition of integers. You know how we add a number line? Just recall it. If I have a number line, if I have simply a number line and I want to add 5 in 3, means 3 plus 5. Then this is my 0, 1, 2, 3. Okay, this is my number 3. Then I have to move 5 point here, okay, in right side. When we add something, we have to move right side. So we have 3, then 1, 2, 3, 4, 5. And 3 plus 1, 4, then 5, then 6, then 7, then 8. So our answer is 8. Okay, you know that. How we can add any number on number line. Okay. So properties of addition of integers. Properties of addition of integers. Now integers are the whole number including positive numbers, negative numbers and 0. So they are represented by the symbol capital Z. Okay. When performing addition and subtraction with integers, certain properties hold true and certain are not. We see which properties are true and which are not. Okay. So properties of addition of integer. Addition of integer. If I have 3, 4 and 5, which number? 3, 4 and 5. They are the number. They are the number. Generally I take in this video. Okay. Let A, B and C are any integers. For I have 3, 4 and 5. Now closure property. Closure means what? The sum of two integers is always integer. Means 3 plus 5. 3 plus 5 is equal to 8. 3 is integer. 5 is integer. 8 is also integer. 3 minus 5. 3 minus 5 is equal to what? So from number line, if I have number 3 here, then I have to move how much? 5 point. Okay, here I have number line 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 3. 3, I have 3 here. Then minus. This sign shows move left. Then I have 5. So 5.1. 1, 2, 3, 4 and 5. And my answer is minus 2. How? Minus 2. And this minus 2 is also a integer. So it is an integer. So we can say the sum of any two integer, the sum, 1 minute, the sum of any two integers is always an integer. This property is known as closure property. Which closure means any addition is always lead to an integer.
add integers into integers, we get integers. It is known as closure property. Okay, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. नाउ सेकंड, commutative property. The order in which, 1 minute, the order in which we add or subtract, the order in which you add integer does not change the sum. मीनिंग तो यही है. एग्जाम्पल है a plus b is equal to b plus a, means 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. Okay, 3 plus 4 what? 7. And 4 plus 3, 7, by using number line. Okay, by using number line. How? This is my number line. We have 1 2 3 0 1 0 1 2 3, then 4 5 6 7 8. Now this is my number 3 and I have to move 4 point, है ना. So we have 1 2 3 and 4. Our answer is 7. ठीक है. Now if I have 4, 1 minute, if I have 4 and add 3, then 4, then 1 2 3, then even I get the number 7. So commutative property means the order in which you add integer does not change the sum. Okay. Now associative property. Association, you know, when we add one or more, they are known as association. Okay. The way you group the 3 or more integer, okay, not 1 or more, it's a 3 or more. How much? 3 and more integers. Then adding does not change the sum. Means 3 plus 4 plus 5 is equal to 5, 6, 7, 8 and 12. So our answer is 12. If I add 4 plus 5 plus 3, that is 4 plus 5 9, 9 plus 3 is equal to 12. If I add 5 plus 3 plus 4, 5 8, 5 plus 3 8 plus 4 is also 12. So the grouping, if we add 3 plus 4, then 7 plus 5 12. If I add 4 plus 5, then 4 plus 5 9, 9 plus 3 is equal to 12. Okay, so कहने की बात यह है कि अगर 3 नंबर है या 3 से ज्यादा नंबर है और उनका एडिशन करना है, तो किसी भी का एडिशन, है ना, उसका जो नंबर है ना, ऑर्डर है, वो जरूरी नहीं है. द वे यू ग्रुप the way you group 3 or more integers when adding does not change the sum. और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Which property is the third property? Associative property. Now we move to the fourth property. Additive identity means 0 को अगर किसी इंटीजर में ऐड करें तो हमको आंसर वही इंटीजर मिलेगा. द सम ऑफ एनी इंटीजर्स एंड 0 is the integer itself. means 0 is called additive identity. किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो वही मिलेगा. 3 plus 0 is equal to what? 3 plus 0 is equal to, not 0, it is equal to 3. याद रखना क्या है? 3 plus 0 is equal to 3 and 5 plus 0 is equal to 5. Okay, so हम किसी के अंदर भी 0 को ऐड करें किसी भी तरह से, 0 plus 5 is also equal to 5 and 0 plus 3 is equal to 3. 0 plus 4 is equal to 4. Now additive inverse means for any integer there exists a unique integer minus a. अगर कोई हमारे पास इंटीजर a है, कौन सा? a, तो उसका अपोजिट माइनस a. okay, such that the sum is 0.
मीन्स अगर हमारे पास नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे अगर यहाँ मेरे पास 7 है और यहाँ 0 है तो इधर मेरे को मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, जब 7 प्लस -7 इज इक्वल टू 0 और -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें हमको कुछ देखना नहीं होता है। क्या होता है, अगर अपोजिट नंबर है तो उनका एडिशन हमेशा क्या होगा, 0। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मीनिंग क्या होता है, हम इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा। ओके। सेकंड, कॉम्यूटेटिव। कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर मैं 1 2 3 कुछ भी ले लो इंटीजर्स और उनके जो नंबर्स है उनको मैं अलग अलग क्रम में, यानी कि पहले वाले को दूसरे में और दूसरे वाले को पहले में कहीं पे भी ऐड करूं तो हमको मुझे आंसर मिलेगा, है ना। डज नॉट चेंज द आंसर, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके। क्या लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ओके, ये तो समझ में आ गया। अब है हमारे पास एसोसिएटिव, वो भी तो हमने देखा। उसमें क्या होता है कि हम एसोसिएशन बनाएंगे, 3 4 5 जितने भी दिए हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये कि 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर नहीं बदलेगा, 0 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है ना। ओके। नाउ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स हमको हमेशा एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको ऐड करने से हमको 0 मिल जाएगा। 7 का क्या होगा, -7, 5 का होगा -5, -5 का होगा +5, +4 का होगा -4, -2 का होगा +2। ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब वही जो 5 प्रॉपर्टी अभी देखी वही देखेंगे किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ए बी एंड सी वापस लिया है, यही है हमारे पास 3 4 एंड 5। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, वो तो सही है। 3 -4 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 पॉजिटिव है तो ये हो गया 1। ठीक है। लेकिन यहाँ जो लिखा है ना, क्या लिखा है, इफ a बिलोंग्स टू z, मतलब कि a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है। 10 - 4 इज इक्वल टू 6 इज एन इंटीजर, -5 -8 इज इक्वल टू -13, -13 इज एन इंटीजर। ओके। नाउ सेकंड वन, सेकंड क्या दिया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ हमने देखा ना 4 -3 कितना होता है 1 एंड 3 -4 कितना होता है -1। ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर, ये 4 - 3, 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +1 एंड 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1 एंड -1 एंड 1 इज नॉट इक्वल, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज द रिजल्ट, हम अगर 2 नंबर लिया है और उनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर बदल जाएगा। ठीक है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मतलब को जोड़ना। अब यहाँ पे भी ऐसा होगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। हमारे पास 3 नंबर हमने दे दिए, 1 मिनट है, थोड़ा जगह कर लेता हूँ। ओके। सो अगर मेरे पास है 3 -4 -5, है ना। अब मैं पहले इसका ग्रुप बनाऊं तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया -1 -5, ये हो गया -6, है ना। ठीक है ना। अब मैंने अगर ग्रुप ऐसे बनाया है 4 -3
-5, तब क्या होगा 4 - 3 है ना, इसका एक ग्रुप बनाते, तो ये हो गया +1 और ये -5 हो गया -4। आंसर बदल गया, बदल गया ना, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर बदल गया। तो क्या लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, changing the grouping of three or more integer change the result, means a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ओके, अब ये भी देख लेते हैं। हमने किया 3 - 4 - 5 इज इक्वल टू, ये 3 का 3 लेने दिया, माइनस, तो अंदर कितने हो गया, कितने हो गए अंदर 5 और 9, है ना। तो हो गया 6 माइनस, ये हो गया 6, है ना। क्या हो गया आंसर हमारा, -6 हो गया। ओके, एसोसिएशन ऐसे करेंगे तब हमारा आंसर तो सही आएगा, लेकिन अगर हमने एसोसिएशन अलग कर दिया, उनके नंबर के ऑर्डर अलग कर दिए, तो हमको मिलेगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। चेंजिंग द ग्रुप, क्या है, चेंजिंग द ग्रुप, ग्रुपिंग। देखो यहाँ जो मैंने किया और यहाँ जो मैंने किया, इसमें क्या किया है, यहाँ 3 - 4 और एक ग्रुप बनाया, ये हो गया -1, ये -5, ये हो गया 6। अब मैंने क्या किया, पहले इनको निकाल लो अगर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 4 -9 6, वही होगा। ओके, लेकिन जैसे ही हमने, ये आंसर तो सही आया, है ना। तो यहाँ लिखा है अनलेस स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है तो आंसर सही आएगा, लेकिन हर बार आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ वी मूव अहेड, वी हैव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन बाय जीरो। अगर हमने किसी के अंदर से किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्टिंग जीरो from any integer result in integer itself. However, subtracting an integer from zero give its additive inverse. मीन्स अगर मेरे पास 3 - 0 मैं करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3, 4 - 0 करूंगा तो आंसर आएगा 4, लेकिन 0 - 3 करूंगा तो आंसर आएगा -3, एंड 0 - 4 करूंगा तो आंसर आएगा -4। तो 0 - 3 करने से क्या मिलेगा मुझे, 3 की इनवर्स मिलेगी, क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है आज यहाँ खत्म करेंगे, तो इसको समराइज करते हैं। क्या पढ़े हमने, तो हमने ये पढ़ा है एडिशन ऑफ इंटीजर इज क्लोज। क्लोज मीन्स हम एक को ऐड करेंगे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। कॉम्यूटेटिव मीन्स हम a प्लस बी करेंगे तो b प्लस ए सही है। एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ऐसे लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। हैज एडिटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, मीन्स जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे हमको नंबर इटसेल्फ मिल जाएगा। नाउ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स वी फाइंड ऑलवेज a number opposite to the number that the addition give the result zero. Okay, now subtraction, subtraction of an integer is close. Close means हमको आंसर तो इंटीजर ही मिलेगा, but it is not commutative, means a minus b 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3। क्या लिखा मैंने, इक्वल टू को कर दिया तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मीन्स व्हाट, a प्लस b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी सॉरी, हम तो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, हाँ एडिशन तो होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, माय मिस्टेक। तो ये है a माइनस बी माइनस सी
is not equal to b minus c minus a. ओके, क्या बोलेंगे हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट हैज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है लेकिन कैसी है, 100% नहीं होता है। ओके, अगर मैं लिखूं 3 माइनस 4 3 माइनस 0 है ना, क्या लिखूं 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 एंड 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब देखिए वीडियो आपको कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन का। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। ये वीडियो को आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल नई है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।